Hello everyone, welcome to Cyber King Capitals. The title of this session is Introduction of Worldwide Market. In this session, we will discuss about the type of worldwide trading. Second one is why global markets are important for traders. Why you need to explore the global markets. Third one is the advantages of the worldwide trading over Indian markets. If you are a trader in Indian market, what are the advantages if you are a trader in worldwide markets? After that, fourth one is the what are the benefits of trading on that platform, and fifth one is the scope of trading, means which opportunities you have on this platform for the trading. Let's see one by one. Next one, first point from the content is the types of worldwide trading. In that you have opportunities you have different instruments for the trading. First one is the global indices, second one is the commodity trading, third one is the forex trading, and fourth one is the crypto trading. All these instruments are available for the trading on our platform. Let's discuss one by one. From that, first one is the global indices. Basically, what are the global indices and how you can trade that? Global indices are just market indices which tracks equities from all over the world. And there are some popular indices, like Nasdaq, Dow Jones, DAX, FTSE. बेसिकली आपने देखा होगा इंडियन मार्केट्स में निफ्टी 50 इज़ द इंडेक्स फ्रॉम द इंडिया जो आप इंडिया में ट्रेड करते हो. सिमिलरली देयर आर सम इंडाइसेस फ्रॉम द यूएस कॉल्ड नैस्डैक और डो जोन्स, वो भी आपको ट्रेड कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट डैक्स भी है, अलॉन्ग विद दैट फुटसी भी है. दे आर फ्रॉम द यूरोप. ऑल्सो एशियन इंडाइसेस में आपको जापान का निक्की भी ट्रेड करने के लिए मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट हांगकॉन्ग का हैंगसेंग भी ट्रेड करने के लिए मिलेगा. दे आर द अपॉर्चुनिटीज़ इन द ग्लोबल इंडाइसेस ट्रेडिंग. ये सभी इंडाइसेस आपके लिए ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है. The second one is the commodity trading. Basically, what are the commodity trading? In a commodity market involves buying and selling or the trading of raw product like oil, gold, wheat and coffee. मीन्स जो भी हार्ड कमोडिटीज़ मार्केट में ट्रेड होती है वो सभी कमोडिटीज़ आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है. यू कैन ट्रेड इन गोल्ड, यू कैन ट्रेड इन ऑयल, यू कैन ट्रेड इन व्हीट, यू कैन ट्रेड इन कॉफ़ी. ऑल द कमोडिटीज़, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, लाइव स्टॉक्स, सॉफ्ट कमोडिटीज़, नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग. Okay. Third one is the forex trading. Basically, what is the forex? Forex is in a simple terms is the currency from the two different countries are comparable or compared. Okay, means you can check the famous currency pair in right now is the Euro USD. Means European currency is compared with the American dollar, US dollar, and that's the pair you can trade. Okay, and there are several pairs are available for the trading in market जो आप trade कर सकते हैं. After that, next one is the crypto trading. Crypto trading is the marketplace where you can buy and sell cryptocurrencies like Bitcoin and Dogecoin. तो इस प्लेटफॉर्म के आपके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग भी अवेलेबल है. यू कैन डू क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑल्सो. ओके, इन ऑल दिस 4 सेशंस, ग्लोबल इंडाइसेस, कमोडिटीज़ और फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये चारों के चारों इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए. ओके, वाई ग्लोबल मार्केट्स आर इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है एंड इसकी आपको ज़रूरत क्यों है. वाई ग्लोबल मार्केट्स आर इम्पॉर्टेंट. देन फर्स्ट पॉइंट इज़ द डाइवर्सिफिकेशन. व्हाट इज़ दैट डाइवर्सिफिकेशन? लेट्स एज्यूम कि सपोज इंडियन मार्केट्स और द इक्विटी मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल. आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और इंडियन मार्केट साइडवेज मोमेंटम कर रहे हैं और द इंडियन मार्केट्स की अनसर्टिनिटी बहुत पीक पे ऊपर जा गई है. एट दैट टाइम हम प्रॉपर उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर रहे. देन यू कैन शिफ्ट योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और द ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट. आप इंडियन मार्केट्स को छोड़ के यू कैन ट्रेड इन यूएस मार्केट्स ऑल्सो, यू कैन ट्रेड कमोडिटीज़ ऑल्सो. बिकॉज जब इक्विटी मार्केट में अनसर्टेनिटी हो जाती है दैन डेफिनेटली कमोडिटीज़ को, जो भी प्रीशियस मेटल्स होंगे, कमोडिटीज़ होंगे, उनमें डायरेक्शनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द इक्विटी मार्केट्स. जो फंड्स है इक्विटी मार्केट्स के वो विड्रॉ होते हैं एंड वो पुट किए जाते हैं कमोडिटी मार्केट में. दैट्स वो रैलीज एज अ ट्रेडर आप कैप्चर कर सकते हैं ईजिली. That's why diversification of your trading instrument is the important thing. Okay, and second one is the growth and basically the volume. जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग आपने देखी होगी और जो यूएस मार्केट में ट्रेडिंग है, कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग है, वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स. आपने चेक किया होगा तो वहाँ पे लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम, ऑल दिस थिंग्स आप चेक करोगे तो इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी एंड बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी दिखेगा ट्रेडिंग के लिए.
ओके, आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ओवर द इंडियन मार्केट्स. ट्रेडिंग में वो जो वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग करने का एडवांटेजेस क्या होते हैं इंडियन मार्केट्स के ऊपर. इंडियन मार्केट्स इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. ग्लोबल मार्केट्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब के इंडियन मार्केट्स अभी बहुत छोटा मार्केट है. ओके, जो जितना वॉल्यूम इंडियन मार्केट में पूरे 1 ईयर में ट्रेड होता है उतना कंप्लीट वॉल्यूम यूएस मार्केट में लेस दैन 7 डेज में ट्रेड होता है. मीन्स यू कैन चेक हाउ मच बिग द साइज ऑफ यूएस मार्केट, और यूएस मार्केट की कितनी बड़ी साइज़ है, उनका वॉल्यूम कितना बड़ा है, ये आपको पता चल सकता है फ्रॉम द. Okay, and again you can trade the stocks like Amazon, Google, Facebook, or all the indices. Okay, after that some benefits of the worldwide market or this platform are: the first one is the leverage, second one is the trading hours, third one is the currency diversification, fourth one is the geographical diversification, and fifth one is the volatility. Okay, let's discuss one by one. In leverage, what is the leverage? Leverage gives you the chance to trader to generate more with less. Means it's the trading strategy of using borrowed money to increase the potential return of and trade. ठीक है, बेसिकली लिवरेज क्या है? लिवरेज इज़ द थिंग जिसके हिसाब जो यूज़ करके आप मार्केट में बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं यूजिंग द लो कैपिटल और यूजिंग द लेस कैपिटल. ओके, बेसिकली इन इंडियन मार्केट्स यू कैन चेक देर इज़ नो एनी लिवरेज फॉर एफ.एन.ओ ट्रेडिंग. एफ.एन.ओ ट्रेडिंग के लिए कोई भी लिवरेज अवेलेबल नहीं है. ओके, इक्विटी ट्रेडिंग के लिए डिलीवरी में भी कोई लिवरेज अवेलेबल नहीं है. सिमिलरली इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ओनली 5 टाइम्स और द 5x लिवरेज अवेलेबल है इन इंडिया. ओके, बट ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू विल गेट द लिवरेज ऑफ 500x. आपको 500x का लिवरेज अवेलेबल हो जाएगा while you are trading on Fink. Okay, after that second thing is the trading hours. When we will discuss about the trading hours, इंडियन मार्केट्स का टाइम है 9 to 3:30. अगर आपको ट्रेडिंग करना है देन यू हैव टू ट्रेड इन दिस टाइम ओनली. आपको इस टाइम में ही ट्रेड करना पड़ेगा. ओके, फ्रॉम द मंडे टू फ्राइडे, एंड ऑल्सो देयर आर सम पब्लिक हॉलीडेज आर देयर. बट वाइल ट्रेडिंग ऑन वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म और वाइल ट्रेडिंग ऑन फिंक, आप ट्रेडिंग करते वक्त आपको 24 आवर्स ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी. यू कैन ट्रेड यूएस मार्केट फ्यूचर्स, यू कैन ट्रेड जापान मार्केट फ्यूचर्स, यू कैन ट्रेड यूरोपियन मार्केट फ्यूचर्स. दे आर ऑल अवेलेबल फॉर द 24 आवर्स. ओके, अलॉन्ग विद दैट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आपके लिए कमोडिटी मार्केट्स ऑन रहेंगे. फॉरेक्स करेंसी पेयर्स अवेलेबल होगा. वहाँ पे कोई भी गैप अप एंड गैप डाउन पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली लाइव. तो लेट्स एज्यूम इफ यू टेक वन ट्रेड, आपने कोई भी ट्रेड लिया है तो वहाँ पे आपको टारगेट और स्टॉप लॉस हिट होना मस्ट है. ओके, आपको गैप अप एंड गैप डाउन नहीं होगा. दैट्स वाई आपका कभी कभी इंडियन मार्केट्स में लेट्स एज्यूम यू बॉट स्टॉक 100 रुपीज़, यू पुट स्टॉप लॉस एट 98 एंड मार्केट डायरेक्टली 95 के ऊपर गैप डाउन ओपन जाता है. देन आपका 2 रुपीज़ का लास्ट स्टॉप लॉस जो होता है वो एक्सटेंड होकर 5 रुपीज़ हो जाता है. तो ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज़ द वोलेटिलिटी. Volatility, what is the volatility? Volatility is main thing, it's a liquidity only. It's the essential measure of how quickly share and currency pairs fluctuate. For the traders, fluctuation is the more important. Fluctuation बहुत ज़्यादा important होता है traders के लिए. अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, देन वहाँ पे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ट्रेडिंग के लिए होगी वो बहुत कम होती है. बट जब मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट में बहुत अच्छी लिक्विडिटी रहती है, तो डेफिनेटली ट्रेडर्स के लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती है. दे कैन फॉलो ट्रेंड्स, दे कैन कैप्चर दैट वोलेटिलिटी, दे कैन कैप्चर दैट मूव्स एंड दे कैन ईजिली मेक मनी. ओके, एंड ऑलरेडी जो मैंने अभी डिस्कस किया कि जो बाहर के जो मार्केट्स है, जो यूएस मार्केट्स है, जो ग्लोबल इंडाइसेस है, सिमिलरली कमोडिटीज़, वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है ट्रेडिंग के लिए. ओके, दैट्स व्हाई यू कैन गेट बेनिफिट्स. Along with that, next one is the currency diversification. In currency diversification, you can check historically rupee has depreciated 2 to 3% per year against the dollar. That's why trading in dollar can imply 2 to 3% bump in returns just to a differentiated currency exposure. It's not a that much big point, but definitely it's interesting और ये भी important point होगा. After that, geographical diversification. Remember one thing, market around the world perform differently at different times. Means let's assume suppose there is a war or there is a border tension between India and China, then definitely Indian market की जो uncertainty है वो peak पे होगी.
ओके मीन्स यू कान ट्रेड इंडियन मार्केट इजीली, और इंडियन मार्केट क्या अनसर्टेनिटी की वजह से आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन चेंज योर ट्रेडिंग इंडेक्स और यू कैन चेंज योर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट. At that time you can trade in US markets also, at that time you can trade in German markets or European markets. Okay, means geographical diversification is also important for the traders, because जहाँ पे मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी है, अच्छे मूवमेंट्स है, जहाँ पे डायरेक्शनल मूवमेंट्स हो रहे, डेफिनेटली आप वहाँ पे ट्रेड करके अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हो. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज़ द स्कोप ऑफ ट्रेडिंग. तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है द ट्रेडिंग का स्कोप. The scope of becoming a trader can never go down. I guess it is the only industry where you can make profit when there is a recession. Suppose recession चल रहा है मार्केट में, then trading is the only industry वहाँ पे आप पैसे बना सकते हो, because you have opportunity to short. यहाँ पे आप सेल करके शॉर्ट करके डाउनवर्ड डायरेक्शन मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हो, एंड यू कैन मेक मनी फ्रॉम देयर ऑल्सो. ओके, वन मोर थिंग, ट्रेडिंग इज अबाउट योर माइंड सेट एंड डिसिप्लिन, नथिंग मोर नथिंग लेस. You don't need to be genius to trade, but your mindset and discipline level should be on the topmost level. ट्रेडिंग बहुत बड़ी कुछ लॉजिक नहीं है. ट्रेडिंग इस करने के लिए आपको बहुत जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, बट माइंडसेट एंड डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी. आफ्टर दैट द स्कोप ऑफ बिकमिंग अ ट्रेडर इज़ वेरी हाई, बट यू हैव टू वेट फॉर इट. ट्रेडिंग एक दो दिन में सक्सेसफुल नहीं होता है. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन, ऑल दिस थिंग्स, उसके साथ आपको डिसिप्लिन, माइंडसेट, ये सभी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी. डेफिनेटली वो सभी चीज़ें आपको डे बाय डे आप ग्रास्प करते जाओगे, आप सीखते जाओगे. यू शुड फर्स्ट लर्न अबाउट ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ ट्रेडिंग. ओके, डोंट गो थ्रो द मनी just because you think it will go up. Rather do research, look at the technicals, fundamentals to identify the best stock or the best instrument for the trading. Okay, just don't put your money in trade. ऐसे ही पैसे मार्केट में पैसे मत डालो, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा. डोंट गैम्बल द मार्केट में गैम्बलिंग मत करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट रिसर्च ऑन दैट, जस्ट लुक एट टेक्निकल्स, लुक एट फंडामेंटल्स, एंड आफ्टर दैट टेक द डिसीजन अबाउट द ट्रेडर्स. यू हैव टू टेक ट्रेड और नॉट, which instrument you need to choose. Okay, इन अपकमिंग सेशंस, ये फर्स्ट वीडियो था जहाँ पे हमने देखा कि प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या क्या स्कोप है ट्रेडिंग के लिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए अवेलेबल है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड मार्केट. From here in upcoming course, we'll discuss one by one about all the indices or all the types of trading. Firstly we'll discuss about the global indices. After that we have the sessions for commodity trading, and after that the forex and cryptos. Okay, that's why one by one सभी वीडियोस एक बार आप देख लो, go through all the videos, definitely you'll get good knowledge and apply this knowledge while trading. वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. यहाँ पे we will end this session, introduction of worldwide market. We'll continue next session of the types of the global indices, and we will see some fundamentals of global indices there. Okay, thank you everyone and bye bye.